Alright, so welcome back. Alright, so welcome back. Am I audible? Okay. So tonight, आज हम सीखेंगे गूगल फॉर्म्स एंड गूगल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स उनके, और फाइल अपलोडिंग जो भी है उसमें सारी चीज़ें देखेंगे. ओके, so I hope everyone is okay and okay. So let us move to Google Form. I'm going to use browser. Okay. एंड ब्राउज़र के बाद मैं फ़ोन पे भी दिखा दूंगा वो. सो लेट्स गो टू गूगल फॉर्म्स फ्रॉम ऐप ड्रॉयर टू फॉर्म्स. दिस इज़ फॉर्म्स एंड ओके. तो इस तरह का कुछ दिखेगा, सेम एज गूगल डॉक्स एंड गूगल शीट्स. एंड नाउ वी कैन क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक और वी कैन टेक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. ये 4-5 टेम्पलेट्स है ऑलरेडी. वी कैन क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक और वी कैन चूज एनी ऑफ द टेम्पलेट्स. So let's create from a blank. So we'll have a better understanding. Okay, so let's go. So I just clicked on the blank form and now I can see a user interface, like it's showing me a tour. Learn about the new Google Forms. Forms has a new look and new ways of collecting and organizing information. You can take the tour for a little help, like it will guide you through these tools and how you can work. Add a question. What would you like to know? Choose from multiple choice, short answer and many more. आप यहाँ से add a question कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट, you can choose a theme that suits your style, or use your own photo or logo to your form. Next, it is not showing any more guide. So let's continue from scratch. So we have a title here, untitled form, and a form description, untitled question, option 1, add option, etc. and यहाँ पे भी देख सकते हैं आप untitled form है. So these two are different. Like this is the form name, the title. Here you can see untitled form. This is the form name. Whatever we'll enter in this section, it will come here, and this is the form title, form heading कह सकते हैं आप इसे. तो ये बस ब्राउज़र में आएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको, एंड ये फॉर्म में दिखेगा. सो लेट्स नेम इट एडमिशन फॉर्म. ओके, यहाँ पे भी हम एडमिशन फॉर्म या फिर कुछ दूसरे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फॉर +5. ओके, तो ये दोनों अलग है. ऑलराइट, so we have a heading of our form class 5, admission form for class 5. We can add a description to let the user know what is this form is for, like इसके बारे में थोड़ा सा details. This is a simple form to take admission of students online. You can fill the below details and submit it to get enrolled in class 5. Okay, now we can add more details like important. See here, यहाँ पे कस्टमाइज के लिए, लाइक आपका टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते, इटैलिक कर सकते, अंडरलाइन करना हो तो कर सकते. एंड यू कैन ऑल्सो लिंक एनी ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम हियर और
फॉर्म पे भी, मे बी फॉर्म पे नहीं होगा लेकिन यहाँ पे हो जाएगा. So this is a heading or a body of your form. This is the heading and this is the body. लेकिन ये पूरा एरिया हेडिंग पे ही रहेगा. एंड वी कैन ऐड ए नंबर ऑफ लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट हो सकता है, डॉटेड लिस्ट हो सकता है, स्ट्राइक थ्रू, सॉरी दिस इज क्लियर फॉर्मेटिंग. ओके, तो अगर आपको कुछ नोट ऐड करना हो, इम्पॉर्टेंट कुछ ऐड करना हो, यहाँ पे नोटा बी हो सकता है, एटसेट्रा चीज़ें ऐड करना हो तो उसे बोल्ड कर सकते हैं. एंड देन बोल्ड करने के बाद उसे लिख सकते हैं मेक श्योर you fill all the starred fields with correct details. Okay, that's all. We can add more line, more anything you have to let the form filler know. Okay, तो इस तरह से आप ऐड कर देंगे यहाँ पे description about the form. Alright, now we have a ready-made question block here, like untitled question. We can simply edit this by clicking on the name and enter your name. Suppose a student is going to fill the form and they have to enter their name first in the first box, first question, and the type of the answer will be a short answer, paragraph, multiple choice, check box, drop down, file upload. यहाँ पे बहुत सारे हैं जो आपको मतलब चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे शॉर्ट आंसर, बिकॉज नेम इज यूजुअली शॉर्ट आंसर लाइक 2 और 3 और 4 एट्सेट्रा. इतना बड़ा ही होता है, ज़्यादातर 3-4 वर्ड्स का ही होता है. तो लेट्स सिलेक्ट शॉर्ट आंसर एंड कीप इट रिक्वायर्ड. व्हेन यू चेक दिस बॉक्स, दैट मीन्स लाइक जब फॉर्म फिलअप करेगा कोई तो इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ के सबमिट नहीं कर पाएगा. अगर आप इससे रिक्वायर्ड को टर्न ऑफ करेंगे तो ये अगर फिल ना भी करे तो भी सबमिट हो जाएगा. ओके, तो रिक्वायर्ड करेंगे तो इसे फिल करना ही पड़ेगा. दैट मीन्स दैट मेक श्योर यू फिल ऑल द स्टार्ट फील्ड्स विथ करेक्ट डिटेल्स. तो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगा. यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टार आ गया यहाँ पे. ओके, तो first question is added. Now we can add another question by clicking simply here this plus icon and see question. Now enter your phone and automatic detect हो जाता है कई बार. See question types magically updated based on your question. phone number भी simply short answer ही होता है, तो short answer is automatically selected and let's make it required. Alright, now we can add more question. We need to add like email. Enter your email and this is also a short type answer, so automatically selected and required. Now, so this is for class 5. Usually they don't have email address. Let's keep it class 12. Okay, class 5 का बच्चे के पास तो नहीं होता है ये सब. Alright, now we can ask for date of birth, your date of birth. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसका डेटा टाइप जो है वो डेट सिलेक्ट हो गया है. तो ये कई बार ऑटोमेटिक हो जाता है. अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन सिलेक्ट दैट डेट, बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर डेट ऑफ बर्थ. तो अगर आप इस तरह का सिलेक्ट कर देंगे तो उसको आसान होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेगा और डेट सिलेक्ट कर देगा. अदरवाइज जब आप टेक्स्ट में करेंगे इसे तो टेक्स्ट डालेगा कोई इस तरह से. आई विल शो दैट व्हेन. ओके, लेट मी शो दैट एग्जांपल कैसे फिल करते हैं. टू सेंड अ फॉर्म, सिंपली गो टू सेंड एंड यू कैन सेंड वाया email address and copy a link, or you can also embed this form on your website. I'm copying a link, shortening it and okay. तो जब भी कोई फिल करेगा इसे ओके, तो इस तरह का आ रहा है अभी. enter your name, so you have to enter a name, enter your phone. These two fields were set as short text like
अल्फ़ाबेटिक जो होता है ABCD एक्सेट्रा इसमें लिखा हो जा सकता है, एंड ये भी 800 ये भी टेक्स्ट है एक टाइप का, एंड देन ईमेल इज ऑल्सो ए टेक्स्ट फॉर्मेट, एंड डेट ऑफ बर्थ, तो इसे भी हमने डेट ऑफ बर्थ को भी टेक्स्ट कर दिया है। तो ये क्या होगा, जिनको इतना फॉर्मल नहीं आता टाइप करना तो वो सिंपली ये सब टाइप कर सकता है, इस तरह से टाइप कर सकता है, कोई इस तरह से भी टाइप कर सकता है, इस तरह से कोई मंथ को आगे ले जा सकता है, एंड डेट को यहाँ पे, ईयर को यहाँ पे, इस तरह से कोई कुछ भी कर सकता है। तो इससे हम बचने के लिए एक डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ डेट। तो अगर इस तरह से कर देंगे, एंड नाउ इफ़ आई रिफ्रेश दैट पेज, सी, तो डेट फॉर्मेट आ गया, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस आइकन, तो इससे मुझे डायरेक्टली डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, एंड ईयर जो भी है, इस तरह से मैं डेट एंड टाइम, मंथ, सारे चीज़ें सिलेक्ट कर पाऊँगा। ओके, so can you add calendar for date field? Yes, that is what calendar, यही तो कैलेंडर है। तो डेट जब कर देंगे आप डेटा टाइप उसका, तो कैलेंडर आ जाएगा इस तरह से। ओके, नाउ so let's keep it date, and we need to make it required, and his address, your address, and address is also usually a short answer, but you can keep long or short. Okay, so we have prepared a form now, and यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप गूगल में किसी भी ऐप्स लाइक गूगल शीट्स हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, इन सारे चीज़ों में काम करेंगे कुछ भी, तो ये ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। दिस इज़ अ गुड थिंग्स अबाउट गूगल। ओके, तो ये ऑटो सेव्स का ऑप्शन होता है, एंड ये ड्राइव पे सेव होता रहता है। लाइक आप कुछ चेंज करेंगे तो विदिन फ्यू सेकेंड्स ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आपको सेव कंट्रोल एस करना नहीं पड़ेगा। तो ये सेव हो गया हमारा, एंड नाउ आई कैन view this form by click the link. So your address is also here, and now I can fill also. So our form is almost prepared. Now if I share this link with you or anyone, they can fill the form simply. So what more we can do is we can ask for emails from the student, like we are taking him into our school or academy, so we need some more information like his photos and मार्कशीट एट्सेट्रा। तो हो सकता है तो इन चीज़ों का हमें चाहिए फॉर्म पे सबमिट करे वो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, लाइक यू कैन ऐड मोर क्वेश्चन, अपलोड योर मार्कशीट, ओके, एंड मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा इससे, तो वी कैन चूज दैट डेटा टाइप here, short answer, paragraph, checkbox, no checkbox भी नहीं, drop down भी नहीं, file upload. So this is the option where user or the form filler will upload a file or a photo of that mark sheet. So let's respondents upload files to drive. Let's continue, and okay, तो हो गया रेडी, फाइल अपलोड हो जाएगा। कहाँ पे होगा आपका फाइल, ये ड्राइव पे जाएगा, एज यू कैन सी व्यू फोल्डर, यहाँ पे ड्राइव का लोगो आ गया है, एंड यू कैन format that file type and also add some conditions like allow only specific file types। आप किस तरह के फाइल टाइप अलाउ करेंगे इस फॉर्म के ज़रिए। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज दिस, यहाँ पे आ गया है, तो allow only specific files type, like we need a image type file only, no document file or no PDF, so we can select that, like we need a image। ओके, तो सिर्फ इमेज ही अपलोड कर पाएगा वो, इमेज जो भी फॉर्म है, लाइक PNG हो, JPG हो, बट दैट शुड बी एन इमेज फॉर्म। ओके, एंड इफ़ यू सिलेक्ट अनदर लाइक ड्राइंग सिलेक्ट करो, तो ड्राइंग फॉर्मेट पे जो फाइल्स होगा वही सिर्फ अपलोड कर पाएगा। तो आई एम सिलेक्टिंग इमेज बिकॉज मार्कशीट इज गोइंग टू बी इमेज एंड इट कैन ऑल्सो बी ए PDF फॉर्म, तो दोनों सिलेक्ट कर दिया, एंड बोथ फाइल कैन बी अपलोडेड थ्रू दैट दिस फॉर्म। सो वी कैन ऑल्सो keep it add some more rules like maximum number of files, कितने फाइल्स अपलोड कर पाएगा एक साथ।
on this field, so we have selected one because marksheet तो एक ही होता है, तो एक ही रहने देते हैं. एंड देन मैक्सिमम फाइल साइज कितना मतलब आपको लिमिट रखना चाहते हैं उससे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक आपके ड्राइव में तो सिर्फ 15 GB मिलता है एंड सपोज यू हैव 100 और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको ये ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 GB कर देंगे तो बड़े बड़े फाइल्स अपलोड कर देगा कोई स्टूडेंट्स, तो फिर फिल हो जाएगा एंड फॉर्म विल नॉट वर्क. तो इसका 10 MB इज़ सुइटेबल फॉर सिंगल फाइल. ओके, मार्कशीट और कितना बड़ा होता है, एक पेज में ही हो जाता है, तो 10 MB इज़ इनफ एंड वी हैव डन हियर. नाउ वी कैन कीप इट रिक्वायर्ड, लेट्स कीप इट एंड ओके, all changes saved in drive. Now we can add more, like photo भी चाहिए, upload your photo. एंड फोटो भी फाइल अपलोड होगा, एंड दैट कैन बी image form, only image, and maximum is 1, 10 MB is enough required. Okay, so we have done here now. Name हो गया, email हो गया, phone number हो गया, date of birth, address, marksheet, and we can add more data. और भी बहुत कुछ मांगे जाते हैं फॉर्म में, बट बस मैं दिखा रहा हूँ आपके एग्जाम्पल के तौर पे. नाउ सी, ये मार्कशीट एंड फोटोज़ ज़्यादातर इतना नीचे रखना कुछ और नहीं लग रहा है, ये तो नेम के बाद या फिर नेम के भी ऊपर होना चाहिए. सो वी कैन री अरेंज दिज फील्ड्स, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है एक 4 डॉट का है, तो इसके ज़रिए आप इसे सिलेक्ट करके, मतलब माउस के ज़रिए हो या टच करके क्लिक करके आप उसे इस तरह से मूव कर पाएंगे, नीचे ऊपर ले जा पाएंगे इस तरह से. तो आई एम टेकिंग दिस टू द टॉप ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक अपलोड जब फोटो का है उसे इस तरह से ऊपर लेके आ गए एंड डन. तो ये ऊपर आ गया, इस फील्ड को मैं हमने ऊपर ले आया. इस तरह से आप नीचे ऊपर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन ब्लॉक को. एंड आवर क्या कहते हैं, फॉर्म इज़ ऑलमोस्ट completed here, and we can send this form to someone to fill that. We can send through email. आप यहाँ पे simply email ऐड करेंगे and subject जो भी आप लिखना चाहते हैं and the message you want to write, and you can also send a link इस तरह से. तो ये डिफ़ॉल्ट लिंक जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, आप इसे शॉर्ट एंड लिंक शॉर्ट कर सकते हैं, इस तरह से छोटा हो जाएगा फिर. एंड नाउ जस्ट कॉपी एंड कॉपी इस तरह से भी कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर दैट लिंक टू एनीवन. मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से. सो इट्स आस्किंग मी टू साइन अप बिकॉज वी हैव एडेड सम फाइल अपलोडिंग फील्ड, तो इसलिए हमें ये साइन इन करने को बोल रहा है. लेट्स चेक ऑन सेटिंग्स, क्या गड़बड़ है यहाँ पे. नो, तो ये फाइल के लिए दे रहा है. सो लेट्स ओपन दैट फॉर्म टू दिस पेज, this account. So we have opened. Now you can see admission form for class 12. This is a simple form, the description of the form, and now it's asking me to upload my photo. Add file, we can click here and then we can browse file from our computer. Suppose I'm opening submitting this photo and see upload हो रहा है, upload हो गया ये. एंड गलती से कुछ गलत अगर अपलोड हो गया तो आप सिंपली इसे क्रॉस करके डिलीट कर सकते हैं. एंड इफ़ आई ट्राई टू अपलोड सम अदर टाइप ऑफ फाइल, सी यहाँ पे PDF भी है, तो मैं PDF अगर अपलोड करना चाहूँ तो क्या होता है, सी अपलोड ओपन. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया, सिलेक्टेड फाइल कंसाइज जो PDF नेम है इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर अपलोड. तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था जो फाइल टाइप इमेज, दैट मीन्स दैट इट शुड बी एन इमेज ओनली, नो अदर फाइल विल बी एक्सेप्टेड. तो इस तरह से आप इसे कस्टमाइज़ करेंगे फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल रूल्स अप्लाई करके. तो सिर्फ इमेज चाहिए तो इमेज ही सिलेक्ट मतलब अपलोड होगा. तो अपलोडेड. नाउ वी कैन टाइप आवर नेम, माय नेम, एंड द फोन नंबर, email address, and date of birth.
Okay, now address. And mark sheet. So mark sheet we have selected image and PDF also, so both of these file can be uploaded. Let's first try to upload this file. This is a PDF. We are getting an error. See, the error is too large for upload. तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जो marksheet का field था, we have selected the maximum file size is 10 MB, and here we are uploading a file which is, you can say, see the size 15.2 MB. तो इसलिए ये upload नहीं हो रहा है, तो it should be under 10 MB. So we can upload this because this is only 99 KB, 99.1 KB. तो अपलोड हो गया, एंड वी कैन सिंपली क्लिक ऑन द सबमिट बटन, तो ये सबमिट हो जाएगा. लेट्स सी, सबमिट, एंड it is being submitted. Okay, your response has been recorded. तो जब भी कोई इस तरह से सेव करेगा तो आपको वो इन्फॉर्मेशन सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, रेस्पॉन्सेस. यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 आ गया है, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस तो मैं उसका जो सबमिट किया है वो देख सकता हूँ यहाँ से. सी, जो फोटोज़ का फील्ड था, फोटोज़ अपलोड किया है, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इट विल ओपन द फोटो. तो ये फ़ोटो दिख रहा है मैंने जो अपलोड किया था, and the name, phone number, email address, the date of birth, and the address and the mark sheet also. तो इस तरह से अपलोड होके यहाँ पे आ जाएगा आपके रेस्पॉन्स पे. इसे आप तीन तरीके से देख सकते हैं, लाइक समरी जो होता है, एंड देन यू कैन चूज क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वाइज दिखाएगा आपको, लाइक एंटर योर नेम, अपलोड योर फाइल्स, इस तरह से. तो जितने भी सबमिशन होगा, अगर आप एंटर योर नेम पे सिलेक्ट करें तो एंटर योर नेम पे जितने भी सबमिशन है सारे दिखाएगा क्वेश्चन वाइज. एंड दिस इज समरी वाइज, लाइक जितने भी होगा यहाँ पे आ जाएगा, जितने नंबर होगा यहाँ पे आ जाएगा, जितने ईमेल होगा यहाँ पे आ जाएगा. तो बेस्ट ऑफ द व्यू ऑप्शन लाइक रेस्पॉन्स के लिए, तो आप इंडिविजुअल पे जाए, वहाँ पे नंबर वाइज फर्स्ट जो अपलोड किया था जिस बंदे ने, सॉरी जो भी अपलोड किया था जिसने भी, उसका आ जाएगा. एंड अगर किसी और ने सबमिट किया होता तो यहाँ पे 1 of 2 आता, तो हम इस पे यहाँ पे सिंपली 2 टाइप करता, तो जो भी 2 नंबर था, मतलब सेकेंड टाइम अपलोड सबमिट किया था, उसका डिटेल्स आता. तो इस तरह से जो भी सबमिशन है वो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास. एंड ऑल द फोटोज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो विल बी स्टोर्ड ऑन योर गूगल ड्राइव फाइल फोल्डर. तो आपको उसके लिए टेंशन, मतलब कोई बात नहीं और ही करने की. ओके, नाउ वी कैन ऐड सम मोर कंडीशन टू आवर फॉर्म. लाइक एज यू कैन सी, हम जब इस फॉर्म को ओपन किया था, बिफोर दिस फाइल अपलोड सिस्टम, जब नहीं था ये फाइल अपलोड सिस्टम, तब क्या होता था कि कोई भी विदाउट गूगल अकाउंट एंड विदाउट एनीथिंग दे कैन ओपन द गूगल फॉर्म विदाउट गूगल अकाउंट. सो इस तरह से क्या होता है, कुछ कोई भी, मतलब कोई भी अपलोड कर पाएगा, कोई भी 2 बार 3 बार 4 बार, दे कैन स्पैम इट, लाइक बार बार अपलोड कर रहा है बेवजह. तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा डेटा आ जाएगा आपके पास, एंड चेक करने भी जो कि रियल नहीं होगा, तो आपको उसमें दिक्कत आएगी. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक ईमेल एड्रेस फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स. लाइक वी कैन गो टू द सेटिंग्स एंड वी कैन सेट अप आवर फॉर्म्स. We can set this form as a make this a quiz, assign points value, set answers and automatically provide feedback. तो इस तरह से जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनमें ये काम आएगा, मेक दिस क्विज. आप क्विज बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल के उसे आंसर सबमिट, मतलब खुद करके, खुद मतलब सेट आंसर करना पड़ेगा आपको, आंसर बताना पड़ेगा गूगल को कि क्या आंसर है इसका. एंड जब भी कोई आपका रिस्पोंडेंट सबमिट करेगा उसका आंसर, तो ऑटोमेटिक उससे पता चल जाएगा कितना स्कोर्स किया है और कितना आंसर सही दिया है, एक्सेट्रा. ओके, तो आई एम नॉट गोइंग टू शो दिस. Responses, see here, manage how responses are collected and protected. So we can simply collect email addresses so that people will not be able to make spam on this form. They cannot upload forms. They cannot submit forms multiple times, and we can also limit that to 1 response. तो जब इस तरह से मतलब कलेक्ट ईमेल एड्रेस करेंगे हम, तो जो भी रिस्पॉन्ड मतलब सबमिट करेगा
उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, तो वी कैन डिटेक्ट दैट पर्सन, दैट दिस इज द पर्सन सबमिटिंग द फॉर्म अगेन एंड वी कैन इजीली टारगेट हिम और हर। ओके, तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस करेंगे तो जो जब भी ये सबमिट करेगा कोई, लेट्स कॉपी द फॉर्म एंड सी, यहाँ पे ईमेल का ऑटोमेटिक आ गया है, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था फॉर्म पे, आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे ईमेल का कलेक्ट ईमेल एनेबल किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, ईमेल, दिस फॉर्म इज कलेक्टिंग ईमेल एड्रेस। तो इस तरह से आप सिंपली सेटिंग्स पे जाके ईमेल एड्रेस का एनेबल कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ईमेल का फील्ड आ जाएगा। तो हमने एक ऐड किया था वैसे, लाइक एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल, इस तरह से। तो ये ओके, तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन था, ये गूगल के हिसाब से नहीं था, गूगल के हिसाब से ये है। सी एज यू कैन सी दिस इज ऑन द हेडिंग साइड, यहाँ पे है ये। अगर हम कस्टमाइज ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा अलग इसका। तो सेटिंग में जाके जब इनेबल करेंगे वो हेडिंग पार्ट में होगा, एंड दिस इज फ्रॉम गूगल एंड गूगल विल डिटेक्ट दैट इट इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस और नॉट। ओके, तो इस तरह से आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट करेंगे। नाउ वी कैन ऑल्सो डू ऑन थिंग लाइक सेंड रिस्पॉन्डर्स ए कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। जब भी कोई बंदा सबमिट करेगा आपके फॉर्म पे, जो भी फॉर्म है उसमें डिटेल सबमिट करेगा, तो उससे ऑटोमेटिक एक ईमेल एड्रेस ईमेल बैक चला जाएगा, जो भी वो सबमिट मतलब एंटर करेगा डेटा, वो सारे डेटा का एक कॉपी। तो वी कैन एनेबल इट व्हेन रिक्वेस्टेड एंड ऑलवेज यू कैन चूज एनी ऑफ देम। लाइक अगर कोई हम चाहते हैं कि कोई रेस्पॉन्स का कॉपी मांगे तो मिले, तो व्हेन रिक्वेस्टेड, एंड वी कैन ऑल्सो चूज दिस ऑप्शन ऑलवेज to send whenever someone will submit the form, they will receive a copy of the response to their email address. Okay, we can also see this allow response editing. We can allow the respondents to edit their submissions, like कई बार होता है कुछ गलती से ऐड हो गया and we can't submit the form twice, तो एज यू कैन सी लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। जब आप इसे एनेबल कर देंगे तो सिर्फ एक बार ही मतलब सबमिट कर पाएगा एक अकाउंट से। तो उस बार क्या होगा, कुछ गलत टाइप कर दिया, एंटर कर दिया, सबमिट हो गया, एंड दैट इन दैट केस वी नीड टू मेक सम चेंजेस। तो वी कैन give permission to ask for changes like allow response editing, so that they will be able to change the response, sorry, the submissions. Okay, तो इस तरह से चेंजिंग परमिशन दे सकते हैं हम, एंड वी कैन ऑल्सो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ओनली 1 टाइम दे विल बी एबल टू सबमिट द फॉर्म। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है लाइक फाइल अपलोड। जो भी हम फाइल अपलोड का फील दे रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ फाइल अपलोड, दिस ऑल्सो, एंड तो इसमें हम जो भी साइज है, साइज कितना हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टोटल साइज लिमिट फॉर ऑल अपलोडेड फाइल्स। तो सपोज वी हैव 100 ऑफ स्टूडेंट्स एंड इफ दे अपलोड 10 MB सपोज, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 1 GB तो हो ही जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो डिक्रीज इट। तो हम अपने हिसाब से इसे इंक्रीज करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 10 GB ऑफ डेटाज, तो हम 10 GB कर दिया सो दैट इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यू कैन सिलेक्ट दिस एनी ऑफ देम एज योर रिक्वायरमेंट, एंड ये ज़्यादातर जब आप फाइल्स अपलोड करवा रहे हैं तभी ये ज़रूरी होगा, अदरवाइज जो भी ईमेल एड्रेस एंड टेक्स्ट उसका साइज़ बहुत कम होता है, बाइट्स में होता है वो। तो दैट इज़ इन सच केसेस, लाइक जब टेक्स्ट अपलोड होगा, टेक्स्ट सिर्फ है शॉर्ट टेक्स्ट एंड लॉन्ग पैराग्राफ एटसेट्रा, तो उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 GB इज़ इनफ। एंड 10 GB हमने सेलेक्ट किया, एंड वी कैन ऑल्सो सी सम ऑप्शन हियर, प्रेजेंटेशन मैनेज हाउ द फॉर्म एंड रिस्पॉन्सेज आर प्रेजेंटेड, किस तरह से आप दिखाएगा आपको रिस्पॉन्स में। वी कैन सी शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर, कंफर्मेशन मैसेज। यहाँ पे आपने देखा जब मैंने सबमिट किया था, let me submit another time. Let's copy the email address. Okay,
ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेटिंग पे क्या इनेबल किया था, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो ये ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं फर्स्ट, एंड देन यहाँ पे शो रिस्पॉन्डर्स कॉपी ऑफ द रिस्पॉन्स सेंट। अच्छा, तो ये क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्सेज विल बी ईमेल्ड टू द एड्रेस यू दैट यू प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हमने जो भी ईमेल डाला है उसमें हमें एक कॉपी मिल जाएगा जो भी हमने यहाँ पे फिलअप किया है। ओके, तो सबमिट करते हैं। ऑलराइट, सो योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। तो ये कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है, एंड वी हैव अलाउड द रेस्पोंडेंट्स टू एडिट देयर सबमिशन। यहाँ पे इनेबल है, आप देख सकते हैं एडिट योर रिस्पॉन्स का ऑप्शन आया है यहाँ पे। एंड ईमेल पे देखते हैं हमें कॉपी मिला है कि नहीं। सी नाउ वी हैव रिसीव्ड अ कॉपी। थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म लिंक हियर, फॉर्म नेम भी है, फॉर्म नेम एंड लिंक। हियर इज व्हाट वाज रिसीव्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने फिलअप किया था, ईमेल, देन फोन सॉरी द ईमेल्स, देन नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एट्सेट्रा और अपलोडेड। तो इस तरह से दिखाएगा, हमें एक ईमेल भी मिल जाएगा हमने क्या सबमिट किया था उसके बारे में। ऑलराइट, नाउ वी हैव द परमिशन टू एडिट एज इट इज़ एनेबल्ड हियर, इस तरह से। तो वी कैन मेक चेंजेस इनटू द फॉर्म, एंड इससे करते हैं इंडिया। ओके, इंडिया, एंड सबमिट अगेन। So submitted. We can make changes multiple times because it is enabled and there is no more condition like एक बार edit कर पाए या दो बार, इस तरह कोई rules नहीं है यहाँ पे। So we can make changes into the form. Alright, so यहाँ पे आप देख सकते हैं confirmation message like your response has been recorded. We can make it a custom message, like we can add anything here. We can show thank you for filling the form, thank you for enrolling yourself to class 12 at this institute। जो भी हमें ऐड करना चाहिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली गो टू द प्रेजेंटेशन एरिया एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर सबमिशन। सबमिशन के बाद क्या होगा, कंफर्मेशन मैसेज, वी कैन शो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। वी कैन एडिट दैट मैसेज टू थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म एंड गेटिंग enrolling yourself। okay, and visit our website and save। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा उससे वो वाला कंफर्मेशन मैसेज आएगा। लेट्स सबमिट इट अगेन। And now we can see thanks for filling the form and enrolling yourself and the website link। तो इस तरह से आप इसे कस्टम मैसेज ऐड कर पाएंगे। and you can also show link to submit another response। if I want the respondents to submit multiple times, then we can enable this। but यहाँ पे कुछ और लिखा रहा है disabled by limit to one response, as we have enabled this option। इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे इनेबल करने का मतलब ऑप्शन नहीं दे रहा है, बिकॉज वी हैव लिमिट दिस टू वन रिस्पॉन्ड, लाइक एक बार ही सिर्फ अपलोड सबमिट कर पाएगा। Alright, now we can also view the summary of the responses। now we have one more option here, disable autosave for all respondents। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल नहीं है। ये क्या करता है, सिंपली ऑटो सेविंग जो परमिशन है, लाइक टाइप करता है ऑटोमेटिक सेव हो रहा है उसके जीमेल अकाउंट में, तो ये वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा इससे अगर आप इनेबल करेंगे। तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड यू शुड नॉट डू, बिकॉज टाइप कर रहे कोई एग्जाम पेपर शायद लिख रहा है तो बहुत सारा मैसेज टाइप कर रहा है एंड वो किसी गलती से नेटवर्क चला गया या फिर कुछ और हो गया तो पूरा फिर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दिस फीचर इज़ वेरी यूजफुल दैट इट्स allows you to automatically save anything like you are typing and it's continuously saving your data। so ये ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। now we have defaults। फॉर्म डिफ़ॉल्ट्स में हम कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ईमेल एड्रेस ले लेगा, एंटर करना ही नहीं पड़ेगा। सी फॉर एग्जांपल हम जब यहाँ पे सेंडिंग द फॉर्म लिंक, जब इसे ओपन करते हैं फॉर्म को,
अच्छा, हमने सबमिट कर दिया था इसलिए दिखा रहे हैं यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, थैंक्स फॉर फिलिंग कन्फर्मेशन मैसेज, ट्राई कॉन्टैक्टिंग द ओनर ऑफ द फॉर्म इफ़ यू थिंक दिस इज़ अ मिस्टेक। तो इस तरह का भी ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने सबमिट कर दिया। वी कैन मेक चेंजेस थ्रू दिस एडिट बटन, अदरवाइज वी कैन डू समथिंग एल्स। आई एम ओपनिंग फ्रॉम अ डिफरेंट ईमेल अकाउंट एंड इस अकाउंट से मैंने सबमिट नहीं किया था, तो सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ईमेल का तो है लेकिन यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, ईमेल से टाइप करना पड़ता है। एंड इफ़ आई सिलेक्ट दिस एनेबल दिस ऑप्शन, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे जो है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड। नाउ इफ़ आई रिफ्रेश द फॉर्म ऑन दिस पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन आया। सी this name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Only the email you enter is part of your response. तो इसमें जो ईमेल अकाउंट है ये ऑटोमेटिक ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैप्चर कर लेगा, आपको एंटर करने की मतलब ये फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। एंड दिस फील्ड ऑल्सो इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दैट केसेस। तो जब इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो दिस इज़ अ मोर इट विल मेक योर टास्क मोर ईजी। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन डिफॉल्ट, मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, इस तरह का भी ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं अगर हमें चाहिए सारे क्वेश्चन फिलअप करें स्टूडेंट्स या फिर जो भी रेस्पोंडेंट्स हैं, सारे क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिल, तो इसे इनेबल करके रख सकते हैं। सो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ द सेटिंग्स फ्रॉम मेक दिस एज अ क्विज, वी कैन मेक दिस क्विज लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस are there and we can assign set the answers, and whenever someone will submit the answer it will automatically provide them the scores or values. Okay, तो इस तरह से क्विज बना सकते। and collect email address, it will add another field, dedicated field like email का एक field create हो जाएगा इसमें, and then एक copy send होता है इसमें, send responder से copy of the response, and you can, if you enable this option allow response editing, then they will be able to make changes into the submitted form and require sign in। तो इसमें जो आप देख सकते हैं हेडिंग, जब आप लिमिट टू वन रेस्पॉन्स इनेबल कर देंगे तो इसमें क्या होगा, रिक्वायर साइन इन, लाइक कोई भी सबमिट नहीं कर पाएगा इसे विदाउट गूगल अकाउंट। सो दे विल बी रिक्वायर्ड गूगल अकाउंट टू सबमिट टू दिस फॉर्म। एंड फाइल अपलोड भी उसी के अंडर शायद आता है। एनीवे, तो इसमें आप लिमिट कर पाएंगे जितना लिमिट आप लिमिट के अंदर रखना चाहते हैं इस फॉर्म को। एंड प्रेजेंटेशन लाइक हाउ यू वांट टू सी द फॉर्म presentation like so progress bar, shuffle question order and confirmation message edit कर सकते हैं इस तरह से। you can show a link to submit another response, and you can let them see the summary, share result summary with respondents। यहाँ पे एक डिटेल्स आ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, लाइक what type of information they will be able to see। okay, फॉर्म डिफॉल्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल कलेक्ट होगा इसमें, एंड यू कैन मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। सो ऑल राइट, वी हैव कवर्ड देम ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर प्लीज आस्क। नाउ लेट मी टेक द क्वेश्चन फर्स्ट। मैंने बनाया था, कैन यू क्रिएट इन मोबाइल? यस यस यस, कलीमुद्दीन, कैन यू ऐड कैलेंडर फॉर डेट फील्ड? If you want to create a quiz form and upon submission, how can we check our correct answers and how much marks we received? सबमिट पर क्लिक करें, सब स्टूडेंट उस पर टाइटल लिख सकते हैं सर। सबमिट पर क्लिक करें स्टूडेंट, उस पर टाइटल लिख सकते हैं, मतलब सबमिट को आप एडिट करना चाहते हैं। आई मीन द सबमिट बटन में कुछ और टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। डिड यू मीन दैट? फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एनीवेयर वेयर यू वांट टू टेक सर्वेज और कलेक्ट डेटा, जहाँ पे भी, लाइक इट कैन बी ए क्लाइंट्स रिव्यू, लाइक आपको रिव्यू चाहिए तो फॉर्म भेज दिया आपने। आप एडमिशन ले रहे हैं किसी कोर्स में तो स्टूडेंट को फॉर्म भेज दिया आपने टू कलेक्ट देयर इन्फॉर्मेशन। एग्ज़ाम चल रहे तो एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म बना सकते, एंड द स्टूडेंट्स विल सबमिट देयर आंसर शीट्स
बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है ये। इसमें फॉर्म कलर चेंज कर सकते हैं। यस अल्मास प्लीज़ क्लैरिफाई, सबमिट पर क्लिक करे स्टूडेंट उस पर टाइटल लिख सकते हैं, मैंने ये समझा नहीं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज वी कैन कस्टमाइज द फॉर्म कलर, द फॉर्म फॉन्ट स्टाइल एंड अदर थिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कलर पैलेट है, कस्टमाइज थीम, एक टाइटल आ रहा है। जब यहाँ पे माउस ले जाएंगे and click here, so we can see the theme. Text style, we can select any of the text style, choose कर सकते हैं हम। by default roboto होता है यहाँ पे, तो we can choose any of them like comic sans, तो automatically change हो गया। see comic sans is enabled। this is the header section, तो header का change हो गया, बाकी same है। and we can also change that these text also question पे जो है उसे भी impact करते नहीं। so we can choose Oswald to see the fonts are changed now, and the text, the default text we can change also, merit writer see changed। तो इस तरह से आप फॉन्ट चेंज कर पाएंगे, फॉन्ट का साइज भी इस तरह से चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे सारे फॉन्ट्स डिफरेंट जो भी है डिफरेंट जगह पे, ये हेडिंग है, ये बॉडी है, ये क्वेश्चंस है, तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक के लिए डिफरेंट साइज बना सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो ऐड अ हेडर इमेज हियर, इस ऊपर में। तो यहाँ पे जब आप हेडर चूज एन इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो रेडीमेड कुछ इमेजेस मिलेगा आपको इस तरह का, डिफरेंट कैटेगरीज में है, इलस्ट्रेशंस है, बर्थडे है, फूड डाइनिंग एटसेट्राज एंड पार्टी, लाइक यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एंड यू आर taking information like how many people will come, so that you'll have the idea that इतने सारे खाना बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप फॉर्म बना सकते हैं। जस्ट किड्स, तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्री मेड आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज यू कैन अपलोड योर कस्टम डिज़ाइन फ्रॉम अपलोड सेक्शन एंड ब्राउज द फाइल यू वांट टू अपलोड, सिलेक्ट दैट एंड इट विल बी अपलोडेड। एंड यू कैन ऑल्सो मतलब अरेंज कर सकते हैं कहाँ पे किस एरिया को दिखाना चाहते हैं। तो इसका एक साइज होता है, उस साइज में बनाएंगे आप इसे तो आपके लिए आसान हो जाएगा एंड इट विल बी फिट परफेक्टली। तो इसे मैंने उस साइज़ के लिए नहीं बनाया था, जस्ट शोइंग यू। इस तरह से सिलेक्ट एंड डन, तो ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम हेडर ऐड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। हेडर इज एडेड। वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर, तो कलर पे हम इसे ब्लू कर सकते हैं, और भी कलर है, वी कैन ऑल्सो चूज एनी कस्टम कलर। इस तरह से वी हैव सो मेनी कलर्स हियर, आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं एंड डन। यू कैन ऐड ऑल्सो, यहाँ पे आ जाएगा फिर आगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको बस इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव सिलेक्टिंग दिस, वी आर सिलेक्टिंग, ओके इससे करते हैं। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर है उसे हम वाइट कर सकते हैं इस तरह से। वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ कलर। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड कलर का ही ऑप्शन मिल रहा है, तो एनफ, ठीक है। नाउ थीम का हो गया एंड वी कैन प्रीव्यू द फॉर्म, लाइक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे सेंड करके देख रहे थे। वी कैन ऑल्सो सी द प्रीव्यू ऑफ ए फॉर्म। यहाँ पे इस बटन से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो जब भी क्लिक करेगा कोई, like the creator of the form, they will be able to see the form preview, like किस तरह बना, किस तरह का फॉन्ट्स दिख रहा है, किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह का इमेज दिख रहा है। तो उसके लिए आप प्रीव्यू में जाके प्रीव्यू देख सकते हैं उसका। ऑलराइट, तो हमारे फॉर्म बस इस तरह का दिख रहा है अभी। एंड प्रीव्यू देख के आप पता लगा सकते हैं कहाँ पे चेंज करना हो, कहाँ पे करेक्शन करना हो सकता है, इस तरह की चीज़ है। ओके, सो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसका थीम, फॉन्ट्स एंड बैकग्राउंड, हेडर इमेज। ओके, नाउ फॉर्म। सर एक से ज़्यादा पेज में क्वेश्चंस देना हो तो कहाँ से करेंगे? एंड सर एक फॉर्म फिल किया था हमने, तब उस पर बिफोर सबमिट टाइटल शो हो रहा था। बिफोर सबमिट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग। फिल किए थे आपने, हमने, तब उस पर बिफोर सबमिट टाइटल शो हो रहा था। दिस इज अ फॉर्म टाइटल, दिस इज द हेडिंग एक्चुअली। इसे हम बोल्ड एंड कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से।
इज दिस योर कॉलिंग टाइटल, इसे टाइटल बोल रहे हैं आप, एंड दिस इज द नेम और द एक्चुअल टाइटल ऑफ द फॉर्म, लाइक यहाँ पे आएगा वो, तो ब्राउज़र में इसे ही टाइटल कहते हैं कोई भी वेब पेज का. दिस इज एक्चुअली द हेडिंग ऑफ आवर फॉर्म, एंड दिस इज हेडर इमेज. ओके, तो आप क्या बोल रहे हैं मुझे शायद समझ में नहीं आया. ओके, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक एक से ज़्यादा पेज कैसे ऐड करते हैं. आई वॉज फॉरगेटिंग दैट पार्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरह के कुछ डिटेल्स ऐड किए हैं, एंड आई वांट टू डिवाइड द फॉर्म इनटू टू पार्ट्स. सपोज one part is for personal information and the second part is for academic information about the previous year, previous class, previous mark sheet, etc. Okay, तो हम यहाँ पे email रखते हैं, photos भी रखते हैं, name, phone, email, date of birth and address रहने देते हैं. Now the mark sheet is an academic part, so इसे हम next पेज में ले जाते हैं. तो यहाँ पे हमने बना लिया है, तो हम इसे डिलीट नहीं करना चाहते, तो वी कैन सिंपली डू व्हाट वी कैन डू इज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप एक साइड बार पे ऑप्शन सारे. यहाँ पे ऐड क्वेश्चन का बटन है, ये कॉपी का बटन है, सॉरी इंपोर्ट का बटन है. इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म से, एंड यू कैन ऐड टाइटल. अच्छा, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, वी कैन ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लाइक दिस. तो यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, लाइक एकेडमिक इंफॉर्मेशन, and enter and upload all the required fields correctly. So I think this is what you were talking, Alia Almas, I mean yes, Almas. तो टाइटल इस तरह से ऐड कर सकते हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज़ अ बेसिक, मतलब जो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको हेडिंग दिखेगा, जो भी रेस्पोंडेंट्स होगा, जो भी फॉर्म सबमिट करेगा, एंड द डिस्क्रिप्शन दे कैन सी. तो इस तरह से टाइटल ऐड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड इमेज इन बिटवीन दिज ब्लॉक ऑफ क्वेश्चंस. तो इमेज एंड वीडियो ऑल्सो कैन बी एडेड. तो सिंपल है, क्लिक कीजिएगा एंड देन चूज द फोटो. यू कैन चूज देम फ्रॉम योर कैमरा, डायरेक्टली कैमरा ओपन होगा. बाय URL आप उस फोटो का लिंक डाल सकते हैं. बाय फोटोज़, जब जो आपके फ़ोटोज़ गूगल में है, गूगल इमेज सर्च, यहाँ पे डायरेक्टली गूगल में सर्च भी कर पाएंगे. सपोज स्टूडेंट, तो ये ऑटोमेटिक सर्च रिजल्ट में आ जाएगा. सिलेक्टेड, इंसर्ट, तो ये फ़ोटो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे. एंड यू कैन ऐड ए टाइटल ऑफ द इमेज, लाइब्रेरी बॉय. तो इस तरह से फ़ोटो एंड सेम वो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं इसमें. एंड यहाँ पे हमने देखा आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इस तरह से भी किसी क्वेश्चन को, किसी फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं. लाइक ये एक कैटेगरीज में हो गया एंड दिस कैटेगरी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में हो गया नीचे से. तो इस तरह से भी हम डिवाइड कर सकते हैं. एंड वी कैन डू ऑन मोर वे, लाइक हम इसमें सेक्शन ऐड कर सकते हैं. दिस इज़ वन सेक्शन, पार्ट 1, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस थिंग, लाइक सी हियर व्हेन आई टेक द माउस ओवर इट, ऐड सेक्शन का एक लिखा आ रहा है. क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन 2 आ जाएगा. सी, तो सेक्शन 2 आ गया, एंड ऑल द क्वेश्चंस बिलो दिस सेक्शन 2 विल अपीयर्ड इन सेक्शन 2. तो अब तक जो फॉर्म था हमारा, वो सेक्शन 1, मतलब एक ही फॉर्म में सारी चीज़ें था. अब भी अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ईमेल है, फ़ोटोज़ है, नेम, फ़ोन, ईमेल, जो भी था है, सारे है, एंड एड्रेस तक है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एड्रेस तक ही है सेक्शन 1 पे. फिर एक बटन आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट. तो जब भी इसे फिल करेंगे हम, एंटरिंग एनी डेटा,
एन एड्रेस। ओके, नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो दूसरा सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। सी, इस तरह से हम मल्टीपल सेक्शन ऐड कर सकते हैं किसी फॉर्म में। तो लेट्स कस्टमाइज दैट सेक्शन टू, लाइक वी हैवंट एडेड एनीथिंग, अनटाइटल्ड सेक्शन है। सो दिस इज एकेडमिक information, this is your academic details। तो यहाँ पे हमने ऐड किया था एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है, वी कैन रिमूव इट। एंड लाइब्रेरी बॉय, जो फोटोज़ एंड वीडियो, सेम वही आप ऐड कर सकते हैं, डिलीटिंग दिस ऑल्सो। नाउ वी नीड इज़ योर क्वेश्चन, लाइक प्रीवियस क्लास, what was the previous class। simply enter कर पाएगा। we can assign a check box or multiple question, was it class 1, sorry class 10, class 1, sorry 11। तो ये दोनों ऑप्शन रहेगा एंड नो मोर ऑप्शन। लाइक यूजुअली क्लास 12 में जो एडमिशन लेगा वो तो सिर्फ क्लास 11 पे ही होना चाहिए उसे। तो ये दोनों ऑप्शन इनफ है इसके लिए, इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। एंड लेट्स कीप इट रिक्वायर्ड। एंड प्रीवियस ईयर, they have to type, or we can also, if we are taking admission in 2023, then we can add some options like 2020 or 2021, 2022, and we are taking admission in 2023। तो इस तरह से हम ऐड साल ऐड कर सकते हैं, ईयर। एंड ऑल राइट, कीप इट रिक्वायर्ड। एंड प्रीवियस ईयर मार्कशीट, प्रीवियस मार्कशीट। वी कैन ऐड मोर क्वेश्चन, लाइक कितने परसेंटेज था, कितना टोटल नंबर था। ईयर तो नहीं, यहाँ पे क्लास देना चाहिए, क्योंकि एक साल पढ़ने के बाद कोई अगर गैप दे दे तो प्रीवियस ईयर नहीं होगा, फिर वो प्रीवियस क्लास लिखना ही बेहतर है। प्रीवियस क्लास स्कोर परसेंटेज। ओके, परसेंटेज यहाँ पे एंटर करेगा। एंड टोटल मार्क्स आउट ऑफ, सॉरी 500, इसे ऊपर रखना चाहिए। ओके, सो सेक्शन 2 इज प्रिपेयर्ड। नाउ सेक्शन 2 हो गया एंड वी कैन सी ऑल चेंजेस आर सेव्ड। नाउ लेट्स व्यू द फॉर्म अगेन। सो रिफ्रेश करेंगे बस इससे एंड वी कैन सी, तो हमने अपलोड किया था यहाँ पे, सॉरी टाइप एंड एंटर किया था कुछ डेटा, वो ऑटोमेटिक सेव हो गया है। तो दिस फीचर वर्क्स फॉर बोथ फॉर लाइक फ्रॉम क्रिएटर जो है उसके लिए भी काम करते हैं, जो रेस्पोंडेंट से जो सबमिट कर रहा है उसके लिए भी काम करते हैं। सी, यहाँ पे एक सिंबल देख सकते हैं, जो भी आप टाइप करेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली सेविंग होता रहेगा, सेव। एंड आई एम ओके, ड्राफ्ट सेव्ड। तो ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, तो आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये फिलअप कर दिया था। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट पार्ट इज़ हियर। तो हमने कस्टमाइज़ किया प्रीवियस क्लास which was 11, year was 2022, total marks was 414 out of 500, and percentage maybe 8 point something will be। and upload, we can upload that mark sheet। तो इसका डेटा टाइप PDF था I guess, and this file can be uploaded as you can see the 95.4 KB only। तो उसका मैक्सिमम साइज था 20 MB। वी कैन अपलोड दिस फाइल इंस्टेड। सो यू कैन सी PDF इज बीइंग अपलोडेड एंड फाइनली अपलोडेड एंड सबमिट। तो ये सबमिट हो गया। सी, थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म एंड एनरोलिंग योर सेल्फ। सबमिट हो गया फॉर्म। वी कैन सबमिट अनदर ऑप्शन एज वी हैव एनेबल्ड दैट ऑप्शन। एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली एक
सिंपल नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बना सकते विथ डिफरेंट टाइप ऑफ एडिंग डेटा टाइप एंड सेटिंग्स कंडीशंस एटसेट्रा. सो आई होप एवरीथिंग इज़ कवर्ड. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मल्टीपल सबमिशन आ गए, 4 रिस्पॉन्स आया है अब तक. तो समरी पे जाएंगे तो इस तरह से ग्राफ दिखेगा आपको सेम चीज़ों का, अगर है कुछ तो एज दिस इज सेम, प्रीवियस क्लास सेम है. आई मीन सिर्फ 1% नहीं, जो हमने लास्ट टाइम किया उसी में ये ऑप्शन था, इसलिए एक आ रहा है. 1% सबमिशन 100%. दिस इज ऑल्सो न्यू क्वेश्चन, तो 100% वन रिस्पॉन्स जो वन टाइम रिस्पॉन्ड होगा. ओके, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अगेन. एंड यू कैन सी इंडिविजुअल डेटा. इस तरह से इंडिविजुअल पे जाएंगे तो आप रिस्पॉन्स 1 पे रिस्पॉन्स 1 ईमेल वाइज भी सिलेक्ट कर पाएंगे. अदरवाइज यू कैन एंटर द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स. 2 नंबर तो 2 नंबर का आ गया. यू कैन टाइप 4 तो 4 नंबर का आ जाएगा. ऑलराइट, we have one more thing to show you. I have. All right, so no question. See, one more thing we have to do is, like हम यहाँ पे simply response तो देख सकते हैं, and in some cases like we want this information to be stored on our Google Sheets file, तो we can simply just यहाँ पे click कर सकते हैं. सी यहाँ पे एक गूगल शीट्स का बटन आ रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस 3 डॉट ऑप्शन टू गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्स. जब भी कोई सबमिट करेगा तो इससे हम इनेबल करेंगे तो हमें भी ईमेल मिल जाएगा कि किसी ने सबमिट किया फॉर्म को. यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, मतलब हम कहाँ पे इसे सेव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड ऑल ऑफ द सबमिशन थ्रू दिस बटन, एंड वी कैन प्रिंट देम, वी कैन डिलीट ऑल ऑफ देम. तो सिंपल है ये. एंड दिस इज़ यूज़फुल थिंग्स, लाइक अगर आप इस सारे रिस्पॉन्स का एक स्प्रेडशीट में ऐड करना चाहते हैं, लाइक आपको खुद से एक बनाना ना पड़े स्टूडेंट के लिस्ट सारे, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो भी रिस्पॉन्ड आएगा सारी चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा. जब भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, एंड यू कैन नेम योर स्प्रेडशीट, जो मैंने कल दिखाया था गूगल शीट्स. तो सेम उसी तरह का एक फ़ाइल क्रिएट होगा, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एग्जिस्टिंग वन फॉर दिस वन. तो जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक जितने भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से एक कॉलम लेगा एंड उसी को नेम बनाएगा क्वेश्चंस को, एंड डेटा सारे इनपुट होता रहेगा ऑटोमेटिक. तो क्रिएट करते हैं एंड क्रिएटेड. सही, तो जितने भी सबमिशन था ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है. एंड द टाइम स्टैम्प, जिस टाइम पे सबमिट होगा उसका टाइम, एग्जैक्ट टाइम, ईमेल एड्रेस, फोटोज़ का लिंक, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सारी चीज़ें आ गया है. एंड नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सबमिट करेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा. तो फ़ोटोज़ एंड वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, डायरेक्ट फ़ोटो नहीं मिलेगा. तो लिंक जो कि आपका गूगल ड्राइव में सेव होता है, मैंने जैसे बताया, जो भी फ़ोटोज़ एंड वीडियो अपलोड होगा सारे आपके गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा. ये सारी चीज़ भी गूगल ड्राइव पे ही होता है, लेकिन इसके लिए लिंक नहीं चाहिए आपको, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो इन चीज़ों के लिए लिंक चाहिए होगा, तो लिंक ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है. क्लिक करेंगे तो आपको सीधा वहाँ पे ले जाएगा फ़ोटोज़ में, जो भी फ़ोटो है या फिर वीडियो या फिर कोई भी फाइल है उसमें ले जाएगा. तो इस तरह से आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं डायरेक्टली. तो आपके सारे रिस्पॉन्स यहाँ पे भी स्टोर होगा एंड यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे आसान होगा आपके लिए. ऑलराइट, एनी मोर थिंग टू, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क. I have shown everything from creating a text form, from uploading files and then customizing the theme and adding custom conditions of file uploading. And you can use this Google Forms to lot of things, like बहुत सारे जगह पे ये यूज़ हो सकता है. सर लिंक ऑफ कहाँ से करेंगे, डेडलाइन के बाद जस्ट यहाँ पे जाएंगे आप, ये फॉर्म है हमारा, सेटिंग पे जाए, सॉरी रिस्पॉन्स पे जाएंगे. यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, सी एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स. ये जब एनेबल है तब तक रिस्पॉन्स आता रहेगा. जब इसे ऑफ कर देंगे, ऑफ कर दिया, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज. एंड नाउ इफ समवन इज व्यूइंग माई फॉर्म, सपोज दिस वाज माई फॉर्म, तो इसमें हमें लिंक मिल जाएगा फॉर्म का.
जब मैं ओपन करना चाहूँगा इसे, सी द form name is no longer accepting responses. Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake. तो इस तरीके से आप एक्सेप्टिंग जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर देंगे, तो और कोई सबमिट नहीं कर पाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो ऐड ए कस्टम मैसेज सो दैट द रेस्पोंडेंट्स लाइक जो भी है उसे वो आपको कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि वो सबमिट नहीं कर पा रहे. तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा था कॉन्टैक्ट द ओनर, तो किस तरह से कांटेक्ट करेगा, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है. आप इसमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर कोई भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं ताकि उससे वो लोग आपको कांटेक्ट करें एंड यू कैन अलाउ देम टू सबमिट अगेन. ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन मैसेज फॉर रेस्पोंडेंट्स, कॉन्टैक्ट मी, इस तरह से. तो नाउ it will show the contact information, contact me. All right, any more question? Yes, app is also there. Please don't mind, late हो गया आज भी. Let me show the app also. ऐप में भी सिमिलर है, बहुत मतलब इजी है वहाँ पे और भी, एंड सेम थिंग, सेम चीज़ें है, शायद कुछ कम है लेकिन इजी है. टुमारो वी हैव लास्ट सेशन फॉर टुमारो इज़ फाइल कन्वर्शन. डिफरेंट टाइप के फाइल्स को डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में कन्वर्टिंग टूल्स देखेंगे हम, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, एंड उन्हीं चीज़ों के बारे में. गूगल फॉर्म सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, आपको फॉर्म्स ऐप मिलेगा. तो ये वाला ऐप नहीं है, आप देख लेना गूगल LLC लिखा होगा. अच्छा, यहाँ पे ऐप नहीं मिल रहा है, शायद दिस ऐप कैन बी यूज़फुल. तो इसके लिए गूगल फॉर्म के द्वारा जो ऐप है वो नहीं है शायद. तो आप उसे फ़ोन में अगर करना चाहें तो डेस्कटॉप बना सकते, लाइक आपके जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें आप डेस्कटॉप मोड ऑन करके कर सकते. एंड यू कैन यूज़ दिस ऐप ऑल्सो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये गूगल का फॉर्म नहीं है, ये कोई दूसरा फॉर्म है, तो फ़ोन के लिए अवेलेबल नहीं है. तो हाउ यू कैन डू इज़ दैट, लेट मी शो. फ्रॉम गूगल क्रोम पे जाइएगा एंड गूगल फॉर्म. तो यहाँ पे साइन इन करना ज़रूरी है आपको. ओके, साइन इन करते हैं. यू नीड एन गूगल अकाउंट. गो टू फॉर्म्स, सिंपली आप सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा. तो इस तरह का कुछ दिखता है. फिर फ़ोन पे जब करते हैं आप, तो सिंपली यहाँ पे टाइटल ऑफ द फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, यहाँ पे भी एडमिशन फॉर्म फॉर क्लास, और जो भी आपका टाइटल रखना चाहते हैं. एंड सेम थिंग एज हमने डेस्कटॉप पे किया. आई होप यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कस्टमाइजिंग दिस. सेम चीज़ें है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लिस्ट, एंड क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं इस तरह से. एंड यू वांट टू ऐड अनदर क्वेश्चन, तो आप सिंपली ऐड भी कर सकते हैं क्वेश्चन. एंड सी यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है, मूव टू फोल्डर, मेक कॉपी, स्टार, एट्सेट्रा. एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैंने शायद नहीं दिखाया. सारे जो क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर सकते हैं दिस इज द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो हम क्वेश्चंस जो डालते हैं यहाँ पे, एंटर योर नेम, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे क्लिक करेंगे जब आप, रिक्वायर्ड तो मैंडेटरी है, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप. एंड यहाँ पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एंटर योर फुल नेम ओनली. तो इस तरह से हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं सारे ब्लॉक्स में. तो इस तरह से ऐड करेंगे एंड ऑलराइट. तो डिस्क्रिप्शन इस तरह से ऐड हो जाएगा. एंड आपको नीचे इसका क्वेश्चन ऐड, कॉपी, इंपोर्ट, टेक्स्ट, एट्सेट्रा का ऑप्शन मिलेगा, सेक्शन. तो यहाँ पे देख सकते हैं एडिंग क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, and okay, done. Same as desktop. Any more question? So I told that you will teach how to use link in Canva page. शायद मैंने दिखाया था, I think you missed that class.
एनीवे मैं दिखा दूंगा फिर से कल। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सर 2-3 डेज का रिकॉर्डिंग शायद नहीं मिला है, 2 डेज का नहीं मिला है शायद। एक मैंने एडिट करना है मुझे, और कल का शायद नहीं मिला। Yes, I'll send today's sorry tonight's session recording also। आज का मिल जाएगा। कल का टॉपिक फाइल कन्वर्शन। डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना। Suppose you have a CSV file and you want to convert it to VCF, etc. Okay, so please ask if you have any more question. I'll show that again, otherwise I'll end the session। इस तरह से आप डिलीट भी कर पाएंगे फॉर्म्स को। फॉर्म पे होम पेज पे जाएंगे, आपसे आपको सारे फॉर्म्स दिखेगा। सर क्या आप इसमें कैनवा की क्लास ऐड कर सकते हैं? नो, unfortunately I can't, but maybe I'll create another course for Canva। Okay, so if you don't have any question, then you can leave। Okay, thank you।